Okay, so we were doing stock ledger account under FIFO method. After this, we will solve the same question with weighted average also, not today, but later on. Okay, look at the question. I have always advised you to read the question thoroughly. Start नहीं कर देना है question ऐसे ही. ठीक है, something is above the question, something is below the question. So you have to read it thoroughly. Okay, बीच बीच में कोई एंट्री आएगी उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर रिसेंट एग्जाम 2019 का जो था लास्ट पेपर था, उसके बाद तो ऑनलाइन हुआ, करेक्ट. सो उस पेपर में था ये क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड दिस वाज फॉर 15 मार्क्स. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर एंड फाइंड आउट द वैल्यू. स्टोर का मतलब मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है. Find out the value of closing stock as per FIFO and weighted average cost method. ठीक है. The stock in hand on 1st March 2019 was 5,000 at the rate of 20 per unit. ठीक है. So this is already there with you. This is the opening balance. Then there is a sale, purchase, purchase, sales, purchase, then sales. Okay. What happens later on? शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31st मार्च. तो ये तो लास्ट एंट्री है 31st मार्च की. बट लुक एट दिस एंट्री. अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा जहां से भी ये स्टार्ट हुआ है एंट्री. आउट ऑफ परचेज ऑफ मार्च 7, 100 यूनिट्स वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन मार्च 10. ठीक है. मुझे बताओ ये कौन से डेट का ट्रांजेक्शन है, मतलब किस डेट पे ये एंट्री पास होगी. 10 को ये एंट्री पास होना चाहिए. ठीक है. सो 10 कहां पर आया, 10 इज हियर, है ना. 8 मार्च के बाद में आएगा. ध्यान से ये जब हम लोग कर रहे होंगे तो बीच में ही आपको ध्यान होना चाहिए. इफ इट इज अ पेपर, सो पेपर में आप वहां पे मार्क कर लेना ताकि आप गलती से भी गलती नहीं करें. ठीक है. फ्लो में बह नहीं जाना है आपको. 8 मार्च के बाद 10 मार्च की एंट्री आएगी. ठीक है. रिटर्न की एंट्री आएगी. क्या एंट्री आएगी, कैसे आएगी, वो तो बात की बात है. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर that this entry will be there in between 8 March and 12 March. ठीक है. Okay, so we have read the question. Now we will start. Okay, column, this is date. This column is called the first column is called Purchase. Purchase. Okay, this is called Purchase and sale. issues. You can even write sale, but since we are doing store ledger, yeah, stock ledger आप बोलो, store ledger we are doing. So store ledger is for material. Okay, and material issue होते हैं, material sale नहीं होते. Goods sale हो सकते हैं ना, final goods can be sold out, but this is material. So materials are issued to production. So पहले material से production होगा, production से goods बनेगा, तब तो जाके आप उसको sale करेंगे, है ना. So issues is the correct word that should be used. यहाँ पर units, rate and amount. So correct. अगर मैंने कोई और वर्ड यूज किया हो कभी, इट इज मोर और लेस सेम ओनली. कई बार हम लोग रेट पर यूनिट भी यूज करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट, जो भी है अलग अलग वर्ड आप यूज कर सकते हैं. बट नॉट टू गेट कंफ्यूज, जो आप यूज करते आ रहे हैं दैट शुड बी यूज्ड ओनली. ओके, सो द फॉर्मेट इज रेडी. They have asked us to prepare store ledger. Sir, store ledger क्या होता है? Store is the indication of material. The word store, the place store where the material is kept. आपको बार बार बता रहा हूँ. Store is a place where raw material is kept. So store ledger means you are making material ledger, and material is a kind of stock. ठीक है. So आपको stock ledger बोलो, इन्वेंट्री लेजर बोलो, स्टोर लेजर बोलो, रॉ मटेरियल लेजर बोलो,
It is one and the same. Okay, so this is going to be FIFO because we will start with FIFO first. Okay, फर्स्ट एंट्री किसकी आएगी बेटा? 1st March Opening stock. 2019. मार्च ओपनिंग एंट्री में पास कर देता हूँ 1st March. ठीक है, और इफ यू वांट टू राइट इट हियर यू राइट ओपनिंग हियर. इवन इफ यू डू नॉट राइट एनीथिंग देयर इट इज फाइन, नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन. वहां पे कोई मार्क्स भी नहीं कटेंगे. 5000 you already have at the rate of 20 and this is going to be equal to 5000 multiply by multiply by 20. So it is, wait, 5000 multiply by 20. So it is 1 lakh. Okay, now this is complete. Okay, so with this I hope you have a practice of underlying after completing each date. If this is the practice, your answer will look good. Okay, next entry किसकी है? Sales. 2nd March की है. सर Okay. ये एफवाई में हम लोग को सिखाया है. हाँ, so मैंने कहाँ बोला FY में आपको नहीं सिखाया है? Did I say कि आपने FIFO weighted average नहीं किया इससे पहले? I am always saying कि आपने this is already done. ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में था, बट दैट वाज फॉर फिनिश गुड्स. ठीक है, अभी हम लोग रॉ मटेरियल के साथ सेम चीज करेंगे. ठीक है, मेथड, फॉर्मेट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, नथिंग इज न्यू. लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, इससे पहले भी लेक्चर में आपको मैंने बताया कि दिस इज गोइंग टू बी द सेम ओनली. ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू एडजस्टमेंट हियर एंड देयर. लाइक ये रिटर्न वाला भी होगा, आपको आपके सिलेबस में रहा होगा. आई डोंट नो FY में कितना है, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट इट इज ऑल्सो देयर इन कॉस्ट. ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अक्टूबर 2019 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा. ठीक है, तो दिस इज सेम ओनली. ठीक है, विथ लिटिल बिट ऑफ चेंज हियर एंड देयर, बट ऑलमोस्ट द थिंग इज सेम. ठीक है, तो मैं नहीं सिखाऊं आपको, अगर आपने सीख लिया है तो. सेल्स में तो मेरा तो काम है ना, मेरे सिलेबस में तो मुझे सिखाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो सेल्स है मतलब इश्यूज करना है आपको 3000. ठीक है, कौन सा इशू करेंगे हम लोग? हमारे पास ये 5000 वाला स्टॉक है. 20. ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 20. ठीक है, ओके 60. करेक्ट. ये हो गया आपका इश्यूज. दैट मीन्स आपके पास कितना बचा? 5000 में से 3000 इशू कर दिया तो 2000 बच रहा है हमारे पास. करेक्ट, उसका रेट जो है वो 20 है. मीन्स 2000. 40,000. yes, multiply by 20 is to 40,000. ठीक है, this is also done, right? Okay, now 7th March. ठीक है, 7th March, what happens on 7th March? There is a purchase of 8,000. So if there is a purchase, you have to write it as it is. Purchase का कोई प्रॉब्लम नहीं है, purchase एंटर करके लिख लो 22. After multiplying this, 1,76,000. 1,76,000. ठीक है,
क्या इससे पहले हमारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ था? ये बचा हुआ है, अब तक के सेल नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द न्यू परचेज, तो मैं दोनों को मिक्स कर दूं, 2000 प्लस 8000, बोलो 10,000 लिख दूं यहाँ पे? No. नो, दिस इज व्हाट FIFO मेथड, और FIFO मेथड में वी विल नॉट बी मिक्सिंग द गुड्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज में FIFO में एक ही डिफरेंस है, आप गुड्स को मिक्स कर सकते हैं वेटेड एवरेज में, बट इन FIFO यू कैन नॉट मिक्स द गुड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको डेट बाय डेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले क्या आया, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू the ascending order of your date, you will be releasing your stock, that is called first in first out, ठीक है। Okay, so we already had this 2000 stock at the rate of 20, that was 40,000, and we purchased another 8,000 stock that we will not mix, we will show it separately. Okay, that is 1,76,000. Now this is done. Okay, now complete this. Okay, now my question is there any doubt? Okay. No, sir. नो, पता नहीं डाउट के लिए लिखा हुआ है कि तो पहले से लिखा हुआ था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ 7 मार्च हो गया, 7 मार्च के बाद हम लोग 8 मार्च को जाएंगे। ओके, 8 मार्च को वी हैव अगेन परचेज, so it is 4,000 at the rate of 23, that is going to be 92,000. 4,000, yes, multiply by 23, 92,000. okay, so we already had this two, पहले से हमारे पास ये दो हैं, ठीक है। हाँ, ये पहले से हमारे पास दो थे, उसको वैसे ही मैंने कॉपी कर लिया। ये न्यू परचेज है हमारा, इसको इसके नीचे शो कर दो। रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि FIFO में हम लोग गुड्स को मिक्स नहीं कर सकते, एक से ज्यादा परचेस है तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आपको शो करना है। 8 मार्च इज कंप्लीटेड। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज वी विल बी मूविंग। ओके, नाउ विच एंट्री विल बी कमिंग हियर? 10 March. 10th March. 10th मार्च, वेरी गुड। जिसने भी 10th मार्च बोला उसका ध्यान पूरा है क्वेश्चन की तरफ कि 8 मार्च के बाद 12th मार्च नहीं आना चाहिए, बीच में 10th मार्च है, ठीक है। सो दिस मिस्टेक यू कैन नॉट अफोर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अदरवाइज इस डेट के बाद आपके जो भी एंट्रीज होगी सब रॉन्ग हो जाएगी अगर आपने 10th मार्च का एंट्री नहीं किया है तो। नाउ व्हाट इट सेज के आउट ऑफ परचेज ऑफ 100 यूनिट्स were returned to the supplier on March 10. तो एक्चुअली पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंट्री कब आएगी, तो इट विल कम ऑन 10th मार्च, ठीक है। फिर ये बोल रहा है रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है तो मैं परचेस में लिखूं या इश्यूज में लिखूं? Issues. करेक्ट, इट इज नॉट कमिंग इन, इट इज गोइंग आउट, है ना। परचेस किया था, रिटर्न हो रहा है, तो परचेस करेंगे तब तो परचेस में एंट्री आएगी, परचेस रिटर्न होगा तो इट विल बी एंट्री इन द इशू साइड, करेक्ट। सो आई विल इशू 100 यूनिट्स, ठीक है। 10th मार्च को 100 आपका रिटर्न हो गया है, तो आप परचेस रिटर्न है तो आप सेल्स में मतलब इश्यूज में लिखेंगे,
और अगर सेल्स रिटर्न है तो आप परचेस में लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो खाली सेल्स रिटर्न ही ऐसी चीज है जो परचेस में आता है, अपार्ट फ्रॉम दिस शॉर्टेज, ठीक है, और आपका परचेस रिटर्न है, शॉर्टेज है, थेफ्ट है, ठीक है, स्टॉक टेकिंग में कुछ डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपके इश्यूज में आएंगी। तो आपका स्टॉक जल गया है, खराब हो गया है, वॉट एवर इज द रीजन, आपको कहाँ पे लिखना है, इश्यूज में लिखना है, ठीक है। नाउ 100 यूनिट्स विल बी इशूड बिकॉज किसको इशू करना है, आपको परचेज रिटर्न है, सप्लायर को वापस दे देना है। अब ये रेट कौन सा यूज करूं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रेट कौन सा यूज करना है, मेरे पास इनमें से कौन सा रिटर्न होगा। 22. 20 ओके, सो आई थिंक जो 20 बोल रहे हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, ठीक है, इस वजह से बोल रहे होंगे। बट दिस इज नॉट नॉर्मल इशू ना, दिस इज रिटर्न। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कौन सा परचेस है, वो 7th वाला परचेस है ना। 22. हाँ, तो और हम लोग को पता है ये 7th वाला इसमें से कौन सा है, 7th वाला ये है, मिडल वाला है ना। तो इसमें से ही आपको क्या करना है, उसको इशू करना है। तो फीफो में ये एडवांटेज है आपका कि आपको कोई डेट का एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर रिटर्न करना है तो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर क्लियरली नोइंग कि कौन सा स्टॉक कब आया था, ठीक है। सो यू हैव टू इशू अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इधर मैं 22 यूज करूंगा। द सिंपल रीजन इज कि वो 7th मार्च के परचेस में, ये वाले परचेस से 100 आपको रिटर्न करना है, ठीक है। XYZ रीजन कुछ भी रहा हो वो हम लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इशू करते टाइम पे क्लियर लिया है। सी दिस मेथड, दिस थिंग कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन वेटेड एवरेज। बताओ मुझे रीजन क्या है, वेटेड एवरेज में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, आप 7th के परचेस में से इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। वाई? ये देते हैं। करेक्ट, वी हैव मिक्स द गुड्स, हम लोगों ने मिक्स कर दिया है वेटेड एवरेज में। और मिक्स करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा 7 का था, कौन सा 8 का था। सो अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उसको आउट करेंगे, ठीक है। उधर पे ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे एक ही रेट यूज होता है इश्यूज में, ठीक है। बट हियर वी हैव एन ऑप्शन बिकॉज अलग अलग डेट पे क्या हुआ है, आपका इश्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक ये इस तरह की एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं आती थी आपको FY में, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एडिशनल रहती है यहाँ पे, ठीक है। आती भी होगी तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे सीख लो बिकॉज यहाँ पे आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो हम लोग ने ये वाले पर्टिकुलर गुड्स को टच नहीं किया, 2000 वाले को हमने कहाँ से इशू कर दिया है, 8000 में से 100 गया तो 7900 करेक्ट। और ये 4000 को भी हमने टच नहीं किया है, तो इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ। यहाँ से रेट जो है वही कॉपी कर लेते हैं, ओके गलत हो गया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला भी आप, फॉर्मूला है कहीं, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आपको मुझे बताना है, इफ देर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ समझना है आपको, दिस इज समथिंग न्यू, जहां पर न्यू होगा वहां पे हम लोग रुक के एक बार सोच लेंगे कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। 20, ओके। सो पठानतीक आपको पता चल गया होगा अब तक के। यू आर नॉट रॉन्ग बिकॉज अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हैं तो मेथड के हिसाब से आप क्या करेंगे, 20 ही इशू करेंगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर आपको जब क्लियरली पता होता है कि कौन सा स्टॉक है एंड आपको उसको रिटर्न करना है तो आप वही रिटर्न करेंगे। एंड फीफो में इट इज पॉसिबल, वेटेड एवरेज में इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो वेटेड एवरेज में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 7 का था, कहाँ का था, कुछ भी था, उससे हम लोग को लेना देना नहीं। द गुड्स आर मिक्स्ड, एक बार मिक्स्ड हो गए उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रेट से आप इशू करेंगे उसको, ठीक है। तो वहां पे आपको ध्यान देना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल मूव फर्दर। 12th मार्च को जाएंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
12th मार्च को क्या हुआ है? 12th मार्च को सेल हुआ है एंड सेल ऑफ 3000. नाउ टेल मी मैं 3000 कैसे सेल करूं? एज पर फीफो मेथड में कैसे सेल करूं 3000? फर्स्ट पहले वाला 2000 ओके, इसमें से 2000 सेल कर दूं एट द रेट ऑफ Yes, 20 sir. करके, और फिर जो बचा हुआ है 1000 वो 7900 में से सेल कर देंगे. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, correct. ओके, ठीक है. तो जैसा बच्ची ने बोला है वैसे हम लोग करेंगे. सो दिस इज डन. ये दोनों मैंने इशू कर दिया. 3000 इशू करना था तो पहले वाले में से 2000 और दूसरे वाले में से 1000 इशू कर दिया है. नाउ हमारे पास ये कंप्लीट स्टॉक चला गया है. इसमें से भी हमने 1000 निकाल दिया है, तो कितना बचेगा 7000 में से 7900 में से 1000? 8900. बेटा ऐड कैसे हो रहा है? माइनस होना चाहिए ना. 6,900. 6900 यस, इसमें 6900 बचा और 4000 को हमने टच नहीं किया है, तो 4000 वैसे के वैसे ही है. ठीक है, इसका रेट 22 है, इसका रेट 23. फॉर्मूला खुद ही आ गया और आंसर खुद ही आ गया. Okay, is there any doubt? No, sir. Okay, we will move further. 14th March. Yes. बेटा सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो. ऐसे म्यूट करो, पहले म्यूट करो. हाँ, ओके. हमेशा आंसर देने के लिए अनम्यूट करना है और फिर तुरंत म्यूट करना है. ऐसी प्रैक्टिस करो, ठीक है? एकदम हेल्दी रहेगा पूरा लेक्चर ऐसे करेंगे. ओके, चलो. 14th मार्च को परचेज हुआ है. परचेज में कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि परचेज में खाली आपको उसको ऐड करके लिख लेना होता है, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ओके, दिस इज डन. सो वी ऑलरेडी हैड दिस, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर. एंड ये एडिशनल हमने परचेज किया है, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड नाउ. ठीक है, सो परचेस में कुछ नहीं होता. परचेस है तो आप एडिशनल परचेस है वो उसके नीचे जो भी बैलेंस था प्रीवियस वाला उसके नीचे आप लिख के उसको ऐड कर दो. 26 को सेल हुआ है. वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लास्ट के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर स्टॉक ज्यादा होता है. ध्यान से एज पर फीफो मेथड हम लोग को क्या करना है? रिलीज करना है. कितना सेल्स हुआ है? 6000. चलो बोलो 6000 कैसे सेल करूं मैं? फर्स्ट फर्स्ट में से ही हो 6000. जाएगा. हाँ, हो जाएगा. 6000 हो जाएगा तो करेंगे हम लोग. ठीक है, इसमें से 6000 हमने सेल कर दिया. ठीक है, तो कितना बचा अब हमारे पास में? 900. पहले वाले में से 900 बचा, बस. बाकी सब सेम है. Yes. ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन. अब आउट ऑफ परचेज ये हो चुका है. शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31st मार्च. तो शॉर्टेज हो गया है 31st मार्च को. कहाँ पे लिखूं? परचेज में लिखूं या सेल्स में लिखूं? इश्यूज में सेल्स में Sales. आएगा. यस, 50. Issued. यस. कौन सा रेट यूज करूं बेटा? 22 22. यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना कौन सा था क्या था. वी विल यूज द मेथड ओनली. फॉर इशूइंग वी विल ऑलवेज यूज द मेथड except in case of returns and all. So here we are pending with
Okay. 885, correct? बाकी दो का प्रॉब्लम नहीं है, वैसे की वैसी आ जाएगा। इसका 22 है, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज डन हियर। जो था वैसे ही कॉपी करके लिख लिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। So out of 900, I have issued this 15. So there we have 885 at the rate of 22. 4000 वैसे की वैसी था, टच नहीं किया है। वंस अगेन 4000 जो था उसको टच नहीं किया है, ठीक है, वो वैसे ही है। सो इधर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 885 at the rate of 25, 4000 यूनिट्स, इधर पे भी यूनिट्स लिखना है। यूनिट्स, फोर थाउजेंड at the rate of 23 units and 4000 at the rate of 25 units. Sir, 885 into 22 at the rate of 20. अच्छा, ये 22 है, ठीक है। दिस इज 23 एंड दिस इज 25, करेक्ट? ओके, ठंडी लग रही है बे। तो हम लोग को क्यों बता रही है? ओके, दिस इज डन। सो जितने भी स्टॉक बचे थे वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हमने। दिस इज टू बी कॉपीड from next lecture onwards. We will be doing sums on weighted average. यही सेम क्वेश्चन को हम लोग weighted average से भी करेंगे। कहाँ है? ओके, attendance needs to be given. Wait, stop share करता हूँ। Till then, if you have any question, you can put it through chat. सर वेटेड कल करेंगे। हाँ, वेटेड टाइम लगेगा ना, हो नहीं पाएगा एक्चुअली। यही यही प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। वी आर पेंडिंग विद दिस। अगर वापस से लेक्चर करते भी हैं तो भी इट विल नॉट बी कंप्लीटेड, और आधा स्टार्ट होगा आधा कंप्लीट होगा। आई डोंट थिंक सो, एंड वी हैव टाइम नो। हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एंड में हैं, एंड फीफो वेटेड एवरेज यू हैव ऑलरेडी डन इट। तो हम लोग सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंस। सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग इतना स्लो नहीं है, तो हो जाएगा अपना आराम से। डोंट वरी, वेटेड एवरेज आराम से करेंगे। फिलहाल फीफो में अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछो, ठीक है। और एल्स आप लोगों को तो आता ही है, तो आप भी खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको करना है करो, मेरा काम है आपको सिखाना। मैं एक क्वेश्चन तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत स्लो है।
सॉरी, मैं म्यूट था, मुझे पता नहीं था। अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है फीफो से रिलेटेड। सो वी विल स्टार्ट विथ वेटेड एवरेज। और एक क्वेश्चन था जो कि डिफिकल्ट था, जो लास्ट एक एग्जाम में पूछा था कभी, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वी विल आल्सो टेक इट अप, ठीक है, और फिर वाइंड अप करेंगे ये चैप्टर भी। तो सर लिंक भेजो ना एक बार। भेजा है ना, नहीं मिला, वेट, ओके। चैट बॉक्स में देखो, ईमेल ऑप्शन नहीं है। ईमेल ऑप्शन क्यों चाहिए? वी डू नॉट रिक्वायर ईमेल आईडीज। आई थिंक सम ऑफ द टीचर्स हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ ईमेल, बट मुझे जो फॉरवर्ड था मैंने वही आपको फॉरवर्ड कर दिया, बाकी सब्जेक्ट की अटेंडेंस में है इसीलिए। ओके, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा, अटेंडेंस पर्पज के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ इट इज देयर नो प्रॉब्लम, आपको जहाँ पे मिलता है आई विल ऐड इट, लेकिन अभी बीच में ऐड करूंगा तो कुछ लोग अटेंडेंस ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल सबमिट विदाउट ईमेल। हाँ हाँ, सबमिट करो बेटा, विदाउट ईमेल सबमिट करो, आपको अटेंडेंस मिल जाएगा, डोंट वरी। आपने अपना नाम ड्रॉप डाउन से करेक्ट सिलेक्ट करना है, आपकी ईमेल आईडी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई स्टॉप रिकॉर्डिंग।